होगा कि आप A1 A2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 विथ A3, राइट. दिस वाज अप्रोच नंबर 1. एंड वी हैड अनदर अप्रोच, that is A2 and A3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें. These two are once again compatible. They have to be compatible. अगर हमको पूरा चेन मल्टीप्लाई करना है तो हमको पहले A2 A3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन हम इनके प्रोडक्ट को A1 से मल्टीप्लाई करें, राइट. एंड देन वी आल्सो कैलकुलेटेड दैट वी हैव डिफरेंट कॉस्ट फॉर these two multiplications, and some of the, we may have a case that one of them is actually better than the other in terms of the cost. So यहां पे जो पॉइंट आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वो ये है, when you multiply A1 and A2 the dimensions are going to be changed. So let's find out the cost of A1 multiplied by A2. A1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे, the cost of MNP जो रूल है हमारा, if you remember MNP, this is M, this is N and this is P here. तो मुझे बताइए MNP रूल से इसका कॉस्ट कितना आएगा if I multiply A1 and A2, given the cost of MNP फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, what is the cost? It will be 10 into 100 into 5. So this is 5K. 5,000. It will be 5,000, right? 5, brilliant. It is 5,000, right? But the point here जो आप लोग गलती कर सकते हैं वो ये ध्यान देंगे, once we multiply A1 into A2, the dimension is now changing, right? So A1 is 10 cross 100, A2 is 100 cross 5, but when we multiply A1 and A2, now the dimension changes to 10 cross 5, right? And now we need to multiply this with A3, and A3 has a different dimension, of course. A3 is 5 cross 50. So if you multiply these two now, what is the cost by using the MNP rule? If you multiply these two, the cost using MNP rule is, it will be now 10 cross 5 into 50. So now the cost will be 10 multiplied by 5 multiplied by 50, right? Am I correct? We discussed this in the last lecture. So this was the slide actually. We discussed up to this slide in the last lecture. ये A1, A2, A3 तीन हमारे पास मैट्रिसेस हैं और उनको मल्टीप्लाई करने के ये दो अलग अलग अप्रोच है. This is approach number 1. The cost has been calculated here for you. This is approach number 2. This is the approach in which I am parenthesizing by A2, A3. I am getting the product of A2, A3 before, and then I am going with the A1 multiplication. And you can see that the costs differ in a scale of actually by a scale of 10. The cost, if we go for this order of multiplication, अगर इस chain को multiply करें like this, we end up having a total cost of 75,000. And if we start by multiplying A1, A2 and then proceed to multiply with A3, then the cost is actually 1/10. This is 1/10 of the cost of this one. So that's a huge difference. And I have already shared this slide with you in the last lecture. So I think we are familiar with up to this point. Any doubts till this point? No, sir. Okay, fine. अब आगे बढ़ते हैं. हम डिस्कस कर रहे थे एक बड़ा सा एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी में आगे बढ़ते हैं. So the matrix chain multiplication problem is given a chain of matrices. How do you find out the best order of multiplication? ठीक है, फॉर्मली ये प्रॉब्लम ये है, आपके पास n matrices का चेन होगा which should be compatible for multiplication. हम ये मान के चल रहे हैं they are compatible, right? We are not going to verify this. And we as an engineer, we are required to find out the order in which they should be multiplied so that the total cost is the minimum, right? फिर हमने डिस्कस किया था कि पैरेंथेसाइज कैसे करते हैं. So given a set of four matrices, किसी को याद है कितना आया था 4 matrices का पैरेंथेसाइजेशन? 4 को पैरेंथेसाइज करने के कितना आया था? 5 ways. Exactly. 4 को करने का 5 आया था, 3 को करने का 2 रहता है. मैं आपको बता देता हूं, 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 टेक्निक है, जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देखा. 4 को मल्टीप्लाई करना है तो हमने लास्ट क्लास में इसको निकाला भी था और ये आया था 5 आई थिंक. और अगर मैं आपसे अब पूछूं कि 5 को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके हैं, यू कैन जस्ट यूज अ रिकर्सिव रूल. ठीक है, आपको 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए आप उसको तोड़ सकते हैं 1 4 में या 2 3 में, एंड यू कैन एक्चुअली यूज दिस फिगर्स टू कैलकुलेट दैट. कैन एनीवन डिड एनीवन रिकॉल दैट द आंसर? आप मैंने क्विज में दिया भी था इस क्वेश्चन को, किसी को याद है कितने? 14. एग्जैक्टली, द आंसर वाज 14. और इसीलिए मैं लास्ट क्लास पे आंसर डिस्कस नहीं करना चाह रहा था बिकॉज इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ द क्विज, राइट? ओके, these are the actually 5 different parenthesization of a set of 4 matrices. This slide is wrong actually, this should be A4, right? अगर आपके पास 4 matrices हैं, then these are the 5 different ways in which you can parenthesize. So these are like 5 different orders
in which you can actually proceed to multiply them. ठीक है, एक एक पैरेंथेसाइजेशन आपको एक ऑर्डरिंग के बारे में बात कर रहा है, राइट? जस्ट सी वन ऑर्डर फॉर पर्टिकुलर, इसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले A2 A3 को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद A1 को A2 A3 के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एंड देन इस फाइनल प्रोडक्ट को A4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, राइट? एंड यू हैव 5 डिफरेंट ऑप्शंस। आप देख सकते हैं ये अलग अलग ऑर्डरिंग है। एंड एज ए इंजीनियर थिंक अबाउट द कॉस्ट। इन पांचों का ये पॉसिबल है दैट the five of them have different cost, and we are interested in picking up the order in which the cost is minimum. हम interested हैं सबसे कम मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इन द सेंस मैट्रिक्स तो 5 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा, बट सबसे कम स्केलर प्रोडक्ट्स किसमें हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ दिस वाज आवर रनिंग एग्जांपल इन द लास्ट क्लास। वी हैड अ मैट्रिसेस ऑफ वी हैड अ चेन ऑफ 5 मैट्रिक्स। हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, सबसे लीस्ट कॉस्ट तरीका है, उसको अप्रोच कैसे करें। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप किसी भी एक पैरेंथेसाइजेशन का कॉस्ट निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहां से पैरेंथेसाइज करता हूं और मैं डिसाइड करता हूं कि ओके आई एम गोइंग टू डू दिस फर्स्ट, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करने वाला हूं, फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन आई विल एंड अप मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, दैट इज P1 into P2। मान लीजिए मैं आई somehow डिस्कस कि मैं इसको यूज करूंगा, एंड नाउ आई एम कंसर्न कि इसका कॉस्ट कैसे निकालूं। सो इस राइट हैंड साइड में जो है A4 into A5, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे बस यहाँ पे MNP का रूल लगाना है, सो दिस विल बी M क्रॉस N क्रॉस P, जो भी इनके डायमेंशंस होंगे। बट व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन मैं कैसे करूं? बिकॉज मुझे पता है, आपने अभी बताया मुझे कि जब आपके पास 3 मैट्रिक्स होता है तो यू हैव 2 डिफरेंट वेज। सो नाउ हाउ डू आई डिसाइड कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके में से सबसे आसान तरीका कौन सा है, राइट? मैंने इसी को नीचे फ्रेश किया है। सो इन दोनों में से इफ आई हैव P1, then P1 have 2 different options to get the product P1. I need to pick up the best cost to get P1, and of course for P2 I only have one single choice, so I need to pick up the best choice for the sub products P1 and P2. P1 के लिए I will have to decide from 1 out of 2. ठीक है, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास 2 चॉइस है, 2 में से कौन सा। एंड P1 P2 के लिए I don't have any single choice because P2 के पास हमको P2 निकालने के लिए और कोई चॉइसेस नहीं है। एंड देन once we get this product and this product, the next thing is to calculate the MNP for this one, for this multiplication, right? So now coming back to our example, जो लास्ट क्लास का हमारा एग्जांपल था, for this particular matrix chain, let's calculate and let us see how do we calculate the best possible order of evaluation. Okay, tell me इसका आंसर कितना आएगा? What will be the dimension of the final product of this chain? Give me the dimension of the final product. कितने रोज एंड कितने कॉलम्स होंगे इसके फाइनल प्रोडक्ट में? जल्दी। 30 cross 25. या कैसे आया 30 क्रॉस 25? हाउ डू गेट दिस 30 क्रॉस 25? इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यू जस्ट सी 2 ऑफ देम, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल एंड अप हैविंग अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स विथ 30 क्रॉस ये 15 हो जाएगा। ठीक है, देन पिक अप let's pick up this 2, they will be forming a product 15 cross 10. Let's pick up these 2. We can actually pick up any pair and we will have something like 10 cross 25. Then do the same thing, just go on and pick up these 2. You will have 30 cross 10, right? And now just you have only one option, you need to actually multiply these 2 and you will have 30 cross 25. Am I clear so far? आगे बढ़े? Can we proceed? Yes, sir. Yeah, now the interesting thing. Now let me introduce a term for you. ये जो term है, ये इस पूरे algorithm का main essence है. Let me introduce the term Mij. आइए देखते हैं Mij का मतलब क्या है. What does the term Mij mean? ठीक है, let's see इसका मतलब क्या है. Okay, let me define the term. For example, if I want to calculate the value M25, this is actually the minimum number of multiplications, actually scalar multiplications needed to compute the product from the matrix A2
राइट थ्रू अप टू A5, A2 से लेके A5 का जो, मैं इसको चेन नहीं बोल सकता, आई विल कॉल इट एज सब चेन. सब चेन इसलिए बिकॉज वी हैव सम मैट्रिसेस ऑन बोथ द साइड स्टिल लेफ्ट टू बी मल्टीप्लाइड. हमारा चेन 6 एलिमेंट का था, 6 मैट्रिक्स का था. सो इफ वी डिस्कस कि यार इस चेन को मल्टीप्लाई करने का या इस सब चेन को मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट कॉस्ट क्या है, इसी बेस्ट कॉस्ट को हम कह रहे हैं M25. ठीक है. सो स्मॉल m का मतलब है मिनिमम. यहां पे स्मॉल m डिनोट्स द द पॉइंट ऑफ दैट वी आर एक्चुअली टेकिंग द मिनिमम कॉस्ट, एंड 25 डिनोट करता है कि 2 से लेके 5 तक का बेस्ट कॉस्ट क्या है. ठीक है. सो लेट अस यूज this measurement to find out the minimum cost to product the entire chain. Now, before I proceed, I want audio answers from you. Tell me, M22 का मतलब क्या है? What does M22 mean? Anyone? What is the literally meaning of M22? Literally meaning मतलब इसका actual meaning क्या है? I don't want the answer. इसका meaning क्या है? Translate that this into Hindi actually. सर ओनली वन मैट्रिक्स है अपने पास तो या M22 का मतलब है 2 को 2 बनाने के लिए कितने मल्टीप्लिकेशंस करने, राइट? सो द आंसर इज इट्स ट्रिवियल. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है. वी डोंट नीड टू डू एनी मल्टीप्लिकेशन. दिस इज जीरो. व्हाई दिस इज जीरो? बिकॉज आपको A2 को A2 ही रखना है. मैं कह रहा हूं मुझे A2 को A2 ही बना के रखिए, और मुझे ये कितने स्टेप में मैं कर सकता हूं? द आंसर इज इन नो स्टेप. ठीक है, तो दिस इज द ट्रिवियल डेफिनेशन ऑफ M22. यहां पे चीजें ट्रिवियल निकल के आ रही है. नाउ लेट्स हैव समथिंग मोर मीनिंगफुल. Can anybody give me the value for M56? M56 का मतलब है this one. We are discussing about this one. M56 का मतलब है A5 और A6 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा मिनिमम केस में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी द आंसर ऑफ कितने अलग अलग तरीके हैं A5 को A6 से मल्टीप्लाई करने के. Only one way. एग्जैक्टली A5 को A6 से मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, और वो जो तरीका है उसमें कॉस्ट कितना पड़ेगा? रिमेंबर द MNP रूल. MN या एग्जैक्टली द MNP रूल अगर आप करेंगे यू विल हैव 10 into 20 into 25, राइट? सो यहां पे हम लगाएंगे MNP बिकॉज M और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है, एंड MNP विल बी डेफिनेटली 10 क्रॉस 20 क्रॉस 25. ठीक है, राइट? आगे बढ़े. कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ वेज दैट आई कैन हैव टू मल्टीप्लाई M45? 45 मतलब ये वाला. once again we have only one option to multiply 45 because 4 and 5 को मल्टीप्लाई करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. you only have one option, right? so these are the answers. पहले चेक कर लीजिए, do you agree with the answer? just check the figures. क्या फिगर्स से आप एग्री करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. यस सर. Yes, सबको टाइम देते हैं. just see the calculation. I may end up में जीरो होना चाहिए. exactly right. Exactly. ठीक है. So I was waiting for someone to point out this is actually zero. ठीक है, because we don't need any number of scalar multiplications to make the matrix A2 as A2. A2 शुरू से A2 है. A2 को A2 बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, right? Yeah. What about 5, 6? Any mistakes in this? नो सर. 5, 6 का मतलब है ये वाला. ठीक है, ये वाला है 5, 6. इसको मल्टीप्लाई करना एक ही ऑप्शन है. दिस इज 10 into 20 into 25. व्हाट अबाउट 4, 5? आगे बढ़े. Yes, sir. yes, sir. ओके फाइन. ठीक है, कॉपी और पेन सामने रखिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस टुडे, राइट? नाउ लेट अस फाइंड आउट. आपने मुझे बोला कि सर M440 आना चाहिए. डू एग्री विद दिस? M440 आना चाहिए. 4 को 4 बनाने के लिए कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट? M55 कितना आएगा? M55 भी 0 आएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. या M56 आपने पिछले स्लाइड से देखिए, इस स्लाइड से बोला कि M56 5000 है. एग्रीड? यस सर. Yes, sir. M45 भी देखिए, आपने पिछले स्लाइड में बोला कि M45 10,000 है. मैंने ये 4 वैल्यू यहां पे नोट कर दिए. ठीक है, ये 4 वैल्यूज पुराने स्लाइड से मैंने ले लिए. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट M46 यूजिंग दीज वैल्यूज? इन वैल्यूज को यूज करके 46 का कैलकुलेशन बताइए कैसे होगा. पुराने वैल्यूज को यूज किया और M46 को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. जस्ट हैव ए लुक एट दिस स्लाइड. एक बार आप देखिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं.
आई एम ट्राई टू से दैट कि मैं M46 को कैसे पुराने स्लाइड के फिगर्स को यूज करके कैलकुलेट कर रहा हूं. जस्ट गो थ्रू दिस, देन वी विल डिस्कस. सर 3 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 वेज होंगे या और एग्जैक्टली. उसमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट होगा उसको अपन सेलेक्ट कर लें. ब्रिलियंट ब्रिलियंट. ओके, 5-6 M46 का मतलब है दिस एरिया. ठीक है, M46 का मतलब है ये एरिया. नाउ जब आपके पास 3 मैट्रिक्स होते हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं. सो मुझे बताइए, वी आर ट्राइंग टू नाउ मल्टीप्लाई A4 विथ A5 एंड फाइनली विथ A6. 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं. एग्रीड? यस नो? Yes, sir. ठीक है. पहला तरीका होगा कि हम A4 को बाद में मल्टीप्लाई करें और A5 A6 को एक साथ पहले मल्टीप्लाई करें. ठीक है, दिस इज पैरेंथेसाइजेशन 1. पहला तरीका है पैरेंथेसाइज करने का, राइट? दूसरा तरीका होगा A4 A5 को पहले मल्टीप्लाई करें एंड देन इनका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होने वाला है वी मल्टीप्लाई दिस विथ A6. डू यू एग्री विथ दिस? 2 तरीके होते हैं 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के. ठीक है, यस नो? यस सर. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द कैलकुलेशन फॉर दिस. आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं. दिस इज दिस वन. ठीक है, ये वाला है. अगर आप इसका कैलकुलेशन देखें, A4 को मल्टीप्लाई करना है. A4 को A4 बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा बताइए? A4 को A4 ही बनाना है. सो द कॉस्ट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय M44, राइट? M44 क्या होता है? 4 को 4 बनाना है. ठीक है. 5-6 का मतलब है मैट्रिक्स 5 को मैट्रिक्स 6 से मल्टीप्लाई करने का सबसे सस्ता कॉस्ट, सबसे मिनिमम कॉस्ट. एंड सबसे मिनिमम कॉस्ट आपने मुझे बोला पिछले स्लाइड में कि सर 5-6 को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है और वो तरीका 5000 का कॉस्ट का पड़ेगा, 5000, राइट? एंड व्हाट अबाउट दिस? कोई मुझे बताएगा ये कहां से आ रहा है? ये 5 into 10 into 25 कहां से आ गया? एनी आंसर्स फॉर दिस? ये फिगर कहां से आया? सर कॉस्ट ऑफ जो दोनों मैट्रिक्स अपन पैरेंथेसाइज किए हैं M44 एंड 54 उसको मर्ज करने. वेरी गुड. एग्जैक्टली. अगर आप जरा डायमेंशन के ध्यान दीजिए, M44 का डायमेंशन कितना आएगा? एनीवन? M44 का डायमेंशन मतलब A4 का डायमेंशन? 5 cross 10. या A44 इज 5 क्रॉस 10. ठीक है, ये है A44. बट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5-6 मल्टीप्लाई होने के बाद नया डायमेंशन क्या होगा 5-6 का? 5-6 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? ये 5 है, ये 6 है. 10 cross 25. ये हो जाएगा 10 क्रॉस 25. ठीक है. अब मुझे एक बार बताइए, 5-6 मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 10 क्रॉस 25. 4-4 तो 5-10 ही रहेगा. अब आपको 5 क्रॉस 10 को अगर 10 क्रॉस 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके हैं? 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके होते हैं? One way. Only One way. And the cost is given by MNP rule. ठीक है, तो यहां पे we have M as 5, N as 10 and P as 25. तो MNP रूल अगर लगाएं, यहां पे मैं MNP रूल यूज कर रहा हूं. ठीक है, MNP फॉर्मूला को अगर मैं लगाऊं यहां पे तो we have 5 into 10 into 25, right? And this is actually the parenthesization, this one, A4 को बाद में और A5 A6 को पहले, right? Now what about this cost? ये सेकंड वाला कौन सा है? ये सेकंड वाला कॉस्टिंग तब हो रहा है जब आप मैं A4 A5 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड देन आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद A6. आइए देखते हैं 4-5 को मल्टीप्लाई करने का बेस्ट कॉस्ट कितना है. 4-5 को मल्टीप्लाई करने का जो बेस्ट कॉस्ट है दैट इज गिवन बाय M45. और आपने मुझे लास्ट स्लाइड से बोला कि सर M45 1000 है. ठीक है, so this is 1000 because you only have one way to do this. What about M55? 5 को अगर 5 बनाना है तो कितना कॉस्ट पड़ेगा? 5 को 5 बनाने के लिए कितना? द कॉस्ट विल बी 0. ठीक है, कुछ करना ही नहीं है. और ये कहां से आ रहा है? 5 into 20 into 15. ये कहां से आ रहा है? जब आप 4-5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमेंशन कितना हो जाएगा? 4 and 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4-5 को मल्टीप्लाई कीजिए, डायमेंशन कितना हो जाएगा? 4 and 5 का डायमेंशन हो जाएगा 20. या मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 5 क्रॉस 20 हो जाएगा. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट 5 का डायमेंशन कितना है? 10 cross 20. 10 cross 20. 10 cross 20. ओके, आर यू डूइंग समथिंग? यहाँ पे वी आर एंडिंग अप विद सम मिस्टेक. सर 5 cross 20 होगा
And No. This is wrong. This should be 6 6. Nobody pointed out. You're very good. This should be 6 6, na? 4 5 or 5 6 6. Agreed? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है? वो four देखिए five. मैं इसको रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ. This should be like M4 से पहले 5 तक जाना है आपको. ठीक है? M4 5 प्लस बोलो 4 5 के अंदर 6 तक जाना है because I'm interested in taking 6. तो क्या होगा? M66. Yeah, this will be M66 plus the cost needed to multiply this product is इसका जो product है उसका dimension multiplied by the dimensions of this, and this turns out to be, come on, 4 5 का dimension क्या होगा multiply करने के बाद? Sir, 5 cross 20. Yeah, 4 5 का dimension हो जाएगा 5 cross 20, and 5 cross 20 has to be multiplied with A6. A6 का dimension has always been 20 cross 25. ठीक है? ये तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि multiply हो ही नहीं रहा है. So this is actually the calculation. And if I calculate this to M45 already calculated है हमारे पास. देखिए M66 is 0. ठीक है? We don't need to calculate this. And this two यहाँ पे MNP rule लगाए. So this will be 5. MNP rule लगाइए 5 into 20 into 25. ठीक है? मैं जब स्लाइड शेयर करूंगा I will be rectifying this. ठीक है? So this should have been actually 6 6. Yeah. Now do your calculations. मैं इस स्लाइड को भी चेंज कर रहा हूं ताकि आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा है. ठीक है? जस्ट डू योर कैलकुलेशंस. मैं इस स्लाइड को जानबूझ के चेंज कर रहा हूं. I asked you to calculate what is the minimum cost for M46. या मिनिमम कॉस्ट बताइए 46 का कितना आ रहा है. मेरे अगले स्लाइड में फाइनल आंसर कितना आया होगा जल्दी बताइए. एक ऑप्शन है 4 4 प्लस 5 6 और दोनों का प्रोडक्ट. दूसरा ऑप्शन था 4 5 और 6 6. Sir, 4 5 and 6 6. नहीं, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट? फाइनल कॉस्ट बताइए. मुझे यहां से किसको पिकअप करना था? सबसे जो इजी ऑप्शन था, सबसे मिनिमम ऑप्शन था, उसका टोटल कॉस्ट कितना था? या 3500. ब्रिलियंट. इट्स 3500. ये है कैलकुलेशन. ठीक है? अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो पहले वाले का तो हमने कर ही लिया था. 4 4 का 0 था, 5 6 का था 5000, एंड 5 इंटू 10 इंटू 25 था. ये फिगर आपके सामने है 1250. दूसरे वाले का 4 5 का कॉस्ट 1000 था. देन 6 6 का था 0 ऑफ कोर्स, एंड 5 इंटू 20 इंटू 25. तो यू विल एंड अप हैविंग ए कॉस्ट ऑफ 3500 एज द बेस्ट कॉस्ट. एक बार देख लीजिए. डू यू एग्री विद द कैलकुलेशन? फिर आगे बढ़ेंगे. आई विल वेट हियर. See the calculations. See the calculations, then we will go proceed. Please say me yes or no, then we will proceed. yes sir. Yeah, थोड़ा और yes sir आ जाते हैं. Let's have some more yes sirs. See the calculation, students. 3500 आ रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन. आई रिपीट माई कैलकुलेशन. 4 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए 4 6 का जो छोटा सा चेन है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो दो ऑप्शन थे, उन दोनों ऑप्शन में से आई हैड द ऑप्शंस ऑफ 6250 एंड 3500. दो ऑप्शन थे 6250 3500. आई एम गोइंग टू पिक अप 3500 बिकॉज दिस इज अ बेटर कॉस्ट ऑप्शन. डू यू एग्री विद दिस स्लाइड, दिस कैलकुलेशन? Yes, sir. या फाइन. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. Okay, let's proceed. I will be sharing the slide in any case. Okay. Next. Now, can you give me the same calculations for 2 4? Let's see. 2 4 का आंसर सबसे पहले कौन देगा? What is the best cost multiplication for 2 4? तो 2 4 का मतलब है we are discussing this chain, this sub chain actually. 2 4 को मल्टीप्लाई करने के दो ऑप्शंस होंगे. दो में से कौन सा ऑप्शन मुझे बेटर कॉस्ट देगा?
ओके, आई विल गिव यू अ लिटिल बिट हिंट. पहला ऑप्शन कौन सा होगा 2 4 को मल्टीप्लाई करने का? ओके, 2 4 को मल्टीप्लाई करने के ऑप्शंस क्या क्या होंगे? एक ऑप्शन होगा कि मैं A2 को बाद में मल्टीप्लाई करूं और A3 A4 को पहले करूं. ठीक है, राइट, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस. एक सेकंड. Yeah, done. We are discussing about 2 4. So this is our Yes, sir. yeah 2 4. Okay. आइए चलिए बताइए 2. मैं सुन नहीं पाया बेटा, क्या क्या कितना आया कॉस्ट? 4375. 437. आइए देखते हैं. ठीक है, ओके, गिव मी द फॉर्मूला. या वी हैव टू ऑप्शंस, दोनों में से मिनिमम को पिकअप करना है. व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? गिव मी द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट वन. दिस विल बी m. कहां से काटें इसको 2 4 को? M22 and या 2 2. या M34. या एग्जैक्टली. अब देखिए मैं जो बोल रहा हूं मेरे वर्डिंग्स को सुनिए आप. आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 2 4 को. ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग अपनी देसी भाषा में बात कर रहे हैं. ठीक है, 2 4. अब सवाल ये है कि हम इसको कहां से स्लाइस कर सकते हैं, कहां से काट सकते हैं इसको केक की तरह सोचिए कि कहां से काट सकते हैं. देखिए यहां से काट के तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कम से कम एक मैट्रिक्स तो चाहिए. तो एक ऑप्शन है कि हम इसको यहां से काट सकते हैं. ठीक है, तो यहां से काटेंगे तो एक बनेगा A2 का कुछ नहीं करना है हमको, और इधर बचेगा A3 A4. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, राइट. ओके, अगर इसका कॉस्टिंग में बोलूं, इसका कॉस्टिंग निकालने के लिए, तो A2 को A2 बनाने के लिए व्हाट इज द कॉस्ट? A2 को A2 बनाने के लिए कॉस्ट कितना रहेगा? M22, जो कि 0 है, बाद में देखेंगे. नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 4? 3 4 को मल्टीप्लाई करने के कितने ऑप्शंस हैं? 3 4 को मल्टीप्लाई One option. एक ही ऑप्शन है, एंड दैट कॉस्ट इज गिवन बाय 3 4. ठीक है, और मुझे बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जो जब हम फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 का डायमेंशन लेंगे और 3 4 के प्रोडक्ट का डायमेंशन लेंगे और यहां पे MNP रूल लगाएंगे. कैन यू गिव मी दिस? ये देखिए, ये फिगर से आप निकाल सकते हैं. 2 2 का डायमेंशन है 35 क्रॉस 15 और इन दोनों के प्रोडक्ट का डायमेंशन कितना होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ A3 A5? 15. कम ऑन, 15 15 cross 10. 15 क्रॉस 10, राइट. तो A2 को अगर मल्टीप्लाई करना है 15 क्रॉस 10 से और MNP रूल लगाएंगे तो द कॉस्ट विल बी 35, बिकॉज A2 हैज ए रो ऑफ 35 क्रॉस 15 क्रॉस 10, राइट. इसको हमको ऐड करना पड़ेगा विद दिस फिगर्स, राइट. एंड ऑन द सेकंड ऑप्शन, अगर मैं यहां से ना काट के यहां से काटूं इस केक को, से लाइक मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं एंड देन इसको ऐड करूं, देन द इक्वेशंस विल बी M. कम ऑन, M23, यानी हम 3 से काटेंगे, 3 के बाद से एक्चुअली M23 हम निकाल सकते हैं, एंड देन जो 4 वाला है वो अकेले बच जाएगा. सो दिस विल बी M44. ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, 4 वाला शुरू से ही 4 बना हुआ है. एंड देन वी नीड टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस विद दिस. M23 का प्रोडक्ट का डायमेंशन कितना होगा स्टूडेंट्स? M23 प्रोडक्ट का मतलब A23 35 into 5. या दिस विल बी 35 into 5. 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो बन जाएगा 35 क्रॉस 5, और इस 35 क्रॉस 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से. 4 का डायमेंशन है 5 क्रॉस 10, तो कितना लगेगा? 35 क्रॉस 10. MNP रूल लगाएंगे तो 35 क्रॉस 5 Multiplied क्रॉस with 10. 10, राइट. इन दोनों को ऐड कीजिए एंड गिव मी द बेस्ट कॉस्ट. कितना आ रहा है? ये है कैलकुलेशंस. दीज आर द कैलकुलेशंस फॉर यू. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है. इसमें आपने कहां से काटा है? आपने यहां से, इसमें काटा है 2 से. ठीक है, आपने 2 से काटा है. इसमें आपने कहां से काटा है? इसको इस केक को 3 से काटा है. सो एक में आप यहां से काट रहे हैं, राइट. आप कह रहे हैं कि मैं यहां से काटूंगा, और दूसरे आप कह रहे हैं कि नहीं मैं यहां से काटूंगा, यहां से 3 से. आप कहां से काट रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. एनी गेसेस वाई? क्यों नोट कर रहे हैं हम इस बात को कि हम कहां से काट रहे हैं मैट्रिक्स को? क्या फर्क पड़ेगा इसका कैलकुलेशन में? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नोट करके रखना पड़ेगा कि यार इस चेन को मल्टीप्लाई करना कैसे है. ये m के वैल्यूज तो ठीक है, बट करना क्या है इन m वैल्यूज का? तो वी शुड समहाउ रिमेंबर कि कहां से काटने पे सबसे कम कॉस्ट आ रहा है. यहां इसको पहले मल्टीप्लाई करें या फिर पहले इसको पहले मल्टीप्लाई करें. ठीक है, सो दीज आर द टू कॉस्ट एंड द मिनिमम कॉस्ट इज 4375. डू यू एग्री विथ माय कैलकुलेशन? यस नो बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे. Yes, sir.
थोड़ा Yes, sir. सबको थोड़ा सर टाइम या एक मिस्टेक था सर। बोलिए वो- बोलिए बोलिए। सर जो ये लास्ट लाइन में है ना 0 + 750 + 5250 होगा। ओके 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 ओके, ये इसका कैलकुलेशन ना, राइट? 5250 होगा सर। ओके, सॉरी 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 सॉरी, या ये फिगर थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है। दिस शुड बी 5250। थैंक यू। उसके बाद फर्क पड़ रहा है क्या? मिनिमम में नहीं फर्क पड़ रहा ना? नहीं सर। नहीं ओके, नहीं। इसलिए इसलिए बच गए अपन राइट। ये सबसे कम है। ओके थैंक यू। मैंने बोला ना आपको, मैंने खुद कैलकुलेट किया है, तो आई मे द स्लाइड मे कंटेन सम कैलकुलेशन मिस्टेक्स। या और कोई एनी मोर मिस्टेक्स? नो सर, बाकी तो ठीक है। ओके आगे बढ़े। फाइनल आंसर मैंने टैली किया बुक से, सो द फाइनल आंसर विल बी ओके। इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस को एक बार देख लीजिएगा। या एनी मोर डाउट स्टूडेंट इन द कैलकुलेशन? समवन पॉइंटेड आउट अ मिस्टेक, थैंक यू। और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? जस्ट लुक एट द कैलकुलेशंस वंस अगेन, पूरा खेल कैलकुलेशन का ही है। आगे बढ़े। सो कैन वी प्रोसीड? या फाइन। नाउ Yes sir. अब आपके लिए बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाउ द चैलेंज आपके सामने है। M220 होगा, एग्रीड? M220 होगा, एग्रीड? यस और नो? एग्रीड। M23 आपने कैलकुलेट करके मुझे बताया 2625। अच्छा बाय द वे, M23 के लिए कितने ऑप्शन थे हमारे पास? M23 के लिए कितने ऑप्शन थे? One एक वन ही option. ऑप्शन सर। था, एक ही ऑप्शन था। तो यहाँ तो यहाँ पे MNP रूल से आया ये, ठीक है? बाय MNP रूल आई हैव दिस फिगर। M24 के लिए कितने ऑप्शंस थे? दो options थे। हमारे पास दो ऑप्शन थे, एंड दो ऑप्शन में से जो बेस्ट है वो हमने पिकअप किया, ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट 35? 35 के लिए कितने ऑप्शन थे? टू ऑप्शंस। व्हाट अबाउट 45? 45 के लिए कितने ऑप्शन? वन ऑप्शन है। तो यहां पे MNP का रूल लगा है, ठीक है? MNP। व्हाट अबाउट 55? ट्रिवियल, ठीक है? दिस इज ट्रिवियल, जीरो ऑप्शंस। नाउ अगर आपको ये सारे फिगर्स पता है, कैन यू नाउ गिव मी द वैल्यू ऑफ M25? पहले बताइए M25 के लिए कितने ऑप्शंस हैं? M25 आपको A2 से लेके A5 तक मल्टीप्लाई करना है। या 5 ऑप्शंस। Five आप options. या 5 ऑप्शंस, बट वेट ए मिनट, ठीक है? ऑप्शंस तो 5 है, बट आप एक्चुअली कैलकुलेशन कितने में करना पड़ेगा? जरा सोचिए, कहां कहां से काट सकते हैं मुझे ये बताइए। पहला, कहां कहां से काट सकते हैं इस केक को? हम यहां से काट सकते हैं, ठीक है? यस और नो? यस और नो? यहां से काट, यहां से काटेंगे तो कॉस्टिंग आएगा M22, ठीक है? एक M22 इन्वॉल्व होगा, प्लस और क्या इन्वॉल्व होगा बताइए? प्लस M35 या M35 इन्वॉल्व होगा, और इन्वॉल्व होगा बीच का जो वो इनका प्रोडक्ट का मैट्रिक्स का प्लस समथिंग, ठीक है? इट विल बी समथिंग, द समथिंग विल बी द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस प्रोडक्ट विद दिस प्रोडक्ट, राइट? अगर मैं यहां से काटता हूं 3 के बाद से, तो क्या क्या फिगर्स इन्वॉल्व होंगे? 3 के बाद से काटते हैं, चलिए। M23 एग्जैक्टली M23 या प्लस 3 से काटना है, M45 या ब्रिलियंट। Plus M4, cost of multiplying those two. हाँ, M45 प्लस सम कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज टू प्रोडक्ट, ठीक है? उस कॉस्ट को फिलहाल इग्नोर करते हैं, बाद में देख लेंगे कैलकुलेशन में। अगर मैं यहां से काटता हूं तो 4 के बाद से, M24 और फिर हाँ जस्ट plus मिनट, M55 M24 प्लस दूसरा M55 M55 जो कि ट्रिवियल ही है, आप भी जानते हैं कि M55 जीरो है, ट्रिवियल है। प्लस एक और कॉस्ट क्या होगा? एक और कॉस्ट क्या होगा बताइए? प्लस द कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस टू, राइट? तो एक्चुअली हमारे पास पैरेंथेसाइजेशन 5 हैं, बट अगर आप M के वैल्यूज में देखें तो यू विल ओनली हैव 3 ऑप्शंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमारे पास 5 अलग अलग Yes, sir. पैरेंथेसाइजेशन है, बट अगर आप M के वैल्यूज में देखें, चेन का जो टोटल ऑर्डर है, अगर आप उसको देखें तो वी ओनली हैव 3 ऑप्शंस, ठीक है? नाउ सारे फिगर्स यहां पे लिखे हुए हैं। जस्ट डू योर कैलकुलेशंस एंड टेल मी व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर M25? Rather I should say what is the value of M25 actually, not the best value, ठीक है? M25 का एक ही वैल्यू है, बेस्ट वैल्यू को ही हम वैल्यू बोल रहे हैं। नाउ क्लास गिव मी योर कैलकुलेशन, टेल मी द वैल्यू फॉर M25। आपको 3 में से बेस्ट पिकअप करना है, 3 में से आपको बेस्ट पिकअप करना है।
Any answers? ओके, फर्स्ट वाले का कितना आया जब हम 2 से काटते हैं तो? Sir, 13,000. 13,000 अगर हम 2 से काटें, राइट? ओके, 3 से काटे तो, 3 से स्लाइस करें तो? सर 9500। 9500, ओके फाइन, अभी तक तो ये सबसे बेटर लग रहा है। और व्हाट अबाउट 4 से काटें तो? सर मैंने 4 से कटा हुआ बताया। अच्छा अच्छा, फाइन, ओके। सो लेट्स सी द स्लाइड, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, दीज आर द ऑप्शंस एक्चुअली, ये मैं इसकी बात कर रहा था इस स्लाइड की। अगर आप इसको 2 से काटते हैं, डोंट फॉरगेट दैट वी आर वर्किंग ओनली ऑन दिस चेन, ठीक है? हमको पूरे चेन से मतलब नहीं है, वी आर फोकस्ड ऑन दिस सब चेन, ठीक है? हमको सबसे छोटा, सबसे बेस्ट तरीका निकालना है टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट बिटवीन द मैट्रिसेस 2 से लेके 5 तक। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। अगर हम इसको 2 से स्लाइस करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। हम A2 को प्रोडक्ट करने वाले हैं A3, A4, A5 से, ठीक है? इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे वो होगा 2 का, जो कि M22 है ऑफ कोर्स, और आप भी जानते हैं कि M22 0 है, बट फिर भी हमको लिखना तो पड़ेगा एक कॉपी में इसको, ठीक है? दिस इज 0, दिस इज M35, एंड बाकी का जो कॉस्ट होगा, आपको मालूम है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, एंड द कॉस्ट विल बी गिवन बाय द MNP रूल, ठीक है? डॉट डॉट डॉट। यहां से काटते हैं तो you will end up having actually this is the illustration for this parenthesization, and you can also slice the cake from 4, ठीक है? इसमें M55 will be involved because right side में आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बचेगा 5, and for the left part यहां से लेके यहां तक में जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगा वो होगा M2 से लेके 4 तक, दिस इज M24, ठीक है? और अगर हम इसकी बात करें तो यू हैव वन स्लाइस, आप स्लाइसिंग कर रहे हैं 20 से, so the M values involved here will be M2,3 for the left one, and the M value involved for the right part will be M4,5, and of course उसके बाद भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए MNP रूल लगेगा, right? And these are the calculations. Now see the calculation. Do you agree with this calculation? Some girl student ने मुझे बताया था कि 13,000 आ रहा है फर्स्ट वाले का, right? 13,000 पहले का agreed? Yes, sir. सेकंड वाला देखिए, M23 और 45 का ये कॉस्ट सही है क्या? मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है। 7125, इज दिस कॉस्ट ओके? ये कहां से काट रहे हैं, कैन यू टेल मी? ये वाला कहां से काट रहे हैं? ये वाला कहां से स्लाइस कर रहे हैं आप? स्लाइस कहां से कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं. 3 से काट रहे हैं, या 3 से काट रहे हैं तो M से 2 से 3 तक जाइए और 4 से 5 का दूसरा हिस्सा बनाइए। डू यू एग्री विद दिस कैलकुलेशन? ये दूसरा वाला ठीक है? दूसरा वाला ठीक है? यस सर, सही है। यस सर, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड वन? ये कहां से काट रहे हैं? ये कहां से काट रहे हैं? 2455, 2455 में हम कहां से काट रहे हैं? एनी आंसर्स? ये मिटता भी नहीं है मेरा, ठीक है? 2 to 4 and 5 and 5। या मतलब काट कहां से रहे हैं? गिव मी द फिगर। हम काट रहे हैं इसको 4 से, ठीक है? 4 से। 2 से 4 का एक हिस्सा हो गया बेटा, एंड 5 बच गया दूसरे हिस्से में, 5, ठीक है? कहां से काट रहे हैं वो फिगर आपको काम आएगा, उस नंबर पे ध्यान दीजिए। कहां से स्लाइस कर रहे हैं आप चेन को, वो चेन आपको काम आएगा, मतलब वो फिगर आपको चाहिए होगा, ठीक है? एंड बाय द वे यहां पे कहां से काट रहे हैं हम लोग? यहां पे काट रहे हैं 2 से, तो 2 का एक हिस्सा और 3, 4, 5 का दूसरा हिस्सा। See the calculation. Do you agree with the calculations? And the best is like this one. This is the best one, minimum one. देखिए, do you agree? ये मिनिमम है। आपको मिनिमम से भी ज्यादा सबको चेक करना Yes, है, ठीक है? सारे कैलकुलेशन को चेक की। आई एम ओके विद दिस वन, 11375, ठीक है कैलकुलेशन? आई विल वेट हियर फॉर 1 मिनट्स। एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर, करेक्ट। या फाइन। सो सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं जल्दी से समराइज करूंगा इसको। समराइज नहीं, एक्चुअली वी आर लेफ्ट विद वन स्लाइड। नाउ I have drawn a table known as the M values table, ठीक है? Look at this table. M values में मैंने क्या किया है, मैं ये निकाल रहा हूं कि अगर A1 से देखें, मुझे A1 को मल्टीप्लाई करना था और यहां पे मेरे पास 6 ऑप्शन थे कि मैं कहां से काट सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं कहां से काटूं, विच इज द बेस्ट ऑप्शन? और मैं एक्चुअली सारे कॉस्ट निकालने वाला हूं। सो देखिए,
1 को अगर 1 से काटना है, सो बेसिकली जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज नथिंग बट 1 को 1 से काटना है, मतलब कौन से कॉस्ट की बात कर रहा हूं? इट्स एक्चुअली M11, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि M11 इज एक्चुअली 0, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? इस डब्बे में क्या आएगा? इस डब्बे में ये आ रहा है कि अगर आप 1 से शुरू करें, ठीक है, 1 से शुरू करें और 2 तक का आपको बनाना है चेन, तो व्हाट इज द बेस्ट कॉस्ट? एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग M12 हियर। सिमिलरली दिस वन इज 1 से 3 तक जाना है, मतलब 1 से 3 तक को केक को काटना है, तो ये जो स्लाइस होगा 1-3, इसका बेस्ट कॉस्ट क्या है? ठीक है। सिमिलरली ये कौन सा होगा बता सकते हैं आप? व्हाट इज दिस लास्ट वन? दिस इज एक्चुअली द एंट्री फॉर M1,6, ठीक है। ओके, डिड यू नोटिस दिस डायगोनल हियर? ये सब के सब 0 क्यों है? एनी आंसर्स? बिकॉज ये सब के सब क्या है? 1 1 2 2 3 3। आप भी जानते हैं कि किसी में मैट्रिक्स को वही मैट्रिक्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्रीड? यस सर। ओके, नीचे के एंट्रीज क्रॉस्ड क्यों है? ये नीचे के एंट्रीज मैं क्यों छोड़ दे रहा हूं? एनी आंसर्स? मुझे इन एंट्रीज से क्यों मतलब नहीं है? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, ये नीचे के एंट्रीज मतलब एब्सर्ड क्यों है? इनकी जरूरत क्यों नहीं है? दे आर मीनिंगलेस, सेंसलेस। व्हाई दीज एंट्रीज बिलो द डायगोनल आर सेंसलेस? एनी आंसर? सर रिवर्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। हाँ, या हम 4 कंपैटिबल नहीं होंगे सर मैट्रिक्स। कंपेटेबल नहीं, हम 4 से 1 नहीं जा सकते, ठीक है। ओके, अच्छा, नाउ लुक एट द एज वैल्यू टेबल। लुक एट दिस टेबल। ये एज वैल्यूज क्या कर रहा है? ये सिंपल ये बता रहा है कि स्लाइसिंग कहां से कर रहे हैं। एज स्टैंड फॉर स्लाइस। स्लाइसिंग वाला नंबर कौन सा है? तो देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एज वैल्यू। लुक एट दिस एंट्री स्टूडेंट, लुक एट दिस एंट्री जिसको मैं अभी एनसर्कल कर रहा हूं। ये एंट्री कौन सा है? दिस इज एक्चुअली द एंट्री M। कैन यू गिव मी द एंट्री? दिस इज M, come on, this is M 2,3. yeah, this is M, 2,3. and what about the next entry? Adjacent entry कौन सा है? ये कौन सा है? M 2,4. 2,4. okay, now students I will like you to pay attention here. ये जो एंट्री है ये 2,4 का है, और आपने कैलकुलेट करके मुझे बताया कि 2 से 4 तक का जो चेन है उसको मल्टीप्लाई करने का बेस्ट तरीका है 4375 प्रोडक्ट का। तो जब आप 2 से 4 तक निकाल रहे थे, मुझे बताइए 2 से 4 तक मल्टीप्लाई करने के लिए कितने ऑप्शन थे आपके पास? 2 से 4 तक के चेन को कैलकुलेट करने के लिए कितने ऑप्शंस थे? 2 ऑप्शंस। 2 से 4 को आप मल्टीप्लाई करने के 2 ऑप्शन थे, राइट। आपने दोनों में से किसी एक को पिकअप किया होगा, राइट। जो सबसे कम वाला पिकअप किया आपने, उसका कॉस्टिंग था 4375। बट याद कीजिए, जब आप 2 से 4 तक मल्टीप्लाई कर रहे थे, आपने काटा कहां से था? सबसे बेस्ट वाले में कहां से काटा था इसको? 2 से काटा था कि 3 से काटा था? जस्ट गो बैक टू योर कैलकुलेशंस। 2,4 को निकालने के लिए कहां से काट रहे थे आप? बेस्ट कॉस्ट के लिए कहां से काट रहे थे? 2 से कि 3 से? 2 से। ये 3 से था, अगर आप जाके कैलकुलेशन देखें तो, ठीक है। इसलिए यहां पे एंट्री में 3 लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? ये एंट्री 3 क्यों है? बिकॉज आपको 2 से 4 तक जाने के लिए जो स्लाइस करना है वो 3rd नंबर पे करना है। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट दिस इज नथिंग बट, हम पहले 2 से 3 तक जा रहे हैं, ठीक है। हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट विथ 4। इस 3 का मतलब है वी आर स्लाइसिंग दिस वन लाइक दिस। आर यू गेटिंग दिस? कि यहां पे एज वैल्यू कहां से आ रहा है? एज वैल्यूज कहां से आया? क्लियर हुआ? एज वैल्यू बता रहा है कि स्लाइस कहां से करना है, बेस्ट कॉस्ट के लिए स्लाइस कहां से करना है, ठीक है। Yes. am I clear with the as values? M तो क्लियर है आपको, as values क्लियर हुआ, स्लाइसिंग कहां से करना है? Now Yes, I will sir. like you to quickly give me the values for these entries. जल्दी से बताइए इन एंट्रीज का क्या होगा जिनको मैंने छोड़ दिया है। मैं मिटा दे रहा हूं इस सारे एंट्रीज को। जस्ट गिव मी द एंट्रीज फॉर दिस। इन एंट्रीज को बताइए क्विकली, बस लास्ट 2 मिनट्स। आधे कैलकुलेशन आपकी कॉपी में है पहले से। एस को छोड़ दीजिए, आप मुझे बस एम वैल्यूज बताइए। गिव मी दिस। या कौन सी एंट्री बताइए? MA12 बता रहे हैं? कौन सा बता रहे हैं? कोई भी एंट्री बोल सकता है। एनी स्टूडेंट कैन कम अप विद एनी एंट्री। जस्ट गिव मी द एम वैल्यू एंट्रीज। एस को अपन खुद निकालेंगे, एम वैल्यू बता दीजिए।
पहले कौन सी एंट्री निकालना इजी पड़ेगा आपको? सर A12 A12 एक्चुअली इस लाइन पे फोकस कीजिए, इस लाइन पे, ठीक है? और इसके बाद ही आप यहां पहुंच पाएंगे, उसके बाद ही आप यहां पहुंच पाएंगे, ऐसा फोकस कीजिए आप, तो इजी पड़ेगा आपको। या सर A12 is 15,750. 15750, ब्रिलियंट। गिव मी सम मोर एंट्रीज, एक दो एंट्री बोलिए फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, पूरा एंट्री नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। एक दो एंट्री और, एक दो एंट्री बता दीजिए और। या एनीवन? ओके फाइन, so this is that entry, these are the entries, ठीक है? 15,750 was correct. These are the total entries and these are their corresponding as values. Now okay, इतना टाइम नहीं कि हम डिस्कस करें, बस गिव मी a technical answer. ये वाला एंट्री खाली क्यों है? Why is A11 empty? A11 as टेबल में देखिए, ये एंट्री खाली क्यों है जहां मैं अभी एनसर्कल कर रहा हूं? Why सर does उसको स्लाइस किससे करेंगे? exactly? उसको इसका मतलब यह है कि आपको A1 को A1 बनाना है तो कहां से स्लाइस करें? दिस इज मीनिंगलेस, ठीक है? सिमिलरली A2 को A2 बनाने के लिए आपको कहां से स्लाइस करना है? द आंसर इज वी डोंट नीड टू स्लाइस, दैट्स व्हाई द डायगोनल इज एम्प्टी। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पे जीरो क्यों है कॉस्ट? यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंगली एम वैल्यू में डायगोनल जीरो क्यों है? इसका मतलब है A1 को A1 बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, A2 को A2 बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, A4 को A4 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है? लेकिन लुक एट दिस एंट्री, लुक एट द एंट्री A2 A5। A2 A5 को करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है उसका कॉस्ट है 7125, और वो बेस्ट ऑप्शन के लिए जब आप A2 से A5 तक जा रहे हैं, वो बेस्ट कॉस्ट के लिए आपको उसको कहां से काटना पड़ता है, वो कहां से पता चलेगा? यहां एस टेबल से पता चलेगा। A2 से A5 बनाने के लिए आपको पहले 3 से काटना है, दैट मींस आपको 2 एंड 3 को लेके एक हिस्सा बनाना है एंड 4 एंड 5 को लेके दूसरा हिस्सा बनाना है, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर 2 एंड 3 के लिए क्या करें? तो 2 3 के लिए फिर यहां देखिए, 2 3 के लिए आपको 2 से ही काटना है, दैट मींस कुछ नहीं करना है, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय MNP रूल, ठीक है? डिड यू गॉट द मीनिंग ऑफ M टेबल एंड S टेबल? Did you got the meaning of M table and S table? Yes sir. Boys, any answers? आपको समझ में आया S values क्या बता रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. या अब क्लास नोट कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है। I want you to draw this table and send me as a assignment for today. Note down today's question. मैं शेयर भी कर रहा हूं इसको। Just fill in this table and give me the entries. आप लोग मुझे इस टेबल को फिलअप करके दीजिए। या स्टूडेंट्स, ठीक है? सो आई वांट यू टू कंप्लीट दिस टेबल। कैन एनीबडी गिव मी द एंट्री फॉर दिस वन? 1 2 का एंट्री दे सकता है कोई जल्दी से? दिस वन कितना आएगा इसका? A12 का 30 कितना? शायद 30। ओके, इट्स वेरी इजी। 1 2 इज आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बेस्ट कॉस्ट कितना है? इसमें एक ही ऑप्शन है, बेस्ट कॉस्ट की बात ही नहीं है, ठीक है? 120. इट विल बी 5 into 4 into 6, राइट? ठीक है? Yes, sir. तो ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा आपसे। ओके, तो यहीं पे समराइज कंक्लूड करते हैं फिर। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द डिलेइंग द लेक्चर बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, पावर नहीं था मेरे घर में, ठीक है? सो आई विल नॉट सेंड एनी क्विज फॉर टुडे। आज का क्विज हम नहीं लेंगे, नो क्विज फॉर टुडे। जस्ट सबमिट द आंसर ऑफ दिस एज ए असाइनमेंट फॉर टुडे। No quiz for today, right? Because I have not created the quiz because of power, right? Okay, sir. Just send me the snapshot of this. Fill up these entries and send me in WhatsApp or email. Okay? Any doubts? No, sir. Okay, fine. Thank you. No, sir. Thank you. Thank you, sir.